challenge conventional wisdom and develop solutions that address real-world problems. To which prestigious selection comes with a grant of rupees 2.25 lakh and the responsibility. All the director, principal, vice principal, deans are also requested for the same. Video sir. Video sir. Video sir. Dedicated to fostering innovation and excellence. Your presence here today marks the symbol of the collaborative journey that promises to be both inspiring and transformative. Your presence here reflects the collective commitment to Rohit Nagpal and Ms. Swarleen Kaur, University of Petroleum. Look at sir. Cell. Ministry of Education and AICT established the IIC in HEIS to streamline and strengthen the campus innovation and entrepreneurial ecosystems. IIC program was started in the year 2018 and it was adopted by TMU within the same year. IIC institutions receive annual star rating performance based on the type and kind of innovation and entrepreneurial activities conducted during the particular academic year. It has been found that only 600 IIC institutions have emerged as high-performing institutions with streamlined innovation and startup ecosystem in their respective campuses, and TMU proudly stands as one of them. As every year, new institutions are adding up to the IIC network, and many non-performing novice institutions are there, those that need continuous guidance and hand-holding support to develop a responsive ecosystem. In this regard, since 2021, MOE's Innovation Cell is addressing this gap through the Mentor-Mentee scheme by providing a peer mentorship platform for high-performing institutions to act in this program. All the members from the mentee institutions coming from various places like Delhi, Aligarh, Lucknow, Dehradun. Senior members from TMU family, principals, deans, mentor-mentee system. As an academic institution, it is our moral responsibility to guide our students, to motivate our students, and give them the facilities so that they not only becomes job seekers, but they becomes job creators. And they can only become job creators only when we create a kind of ecosystem wherein students right from semester 1, especially I am talking about undergraduate programs, they are exposed to such an environment wherein they can learn lot many things. They can have those kinds of facilities, those kinds of seniors, faculties, faculty mentors, and other facilities around so that they can develop their skills
they can develop their mindset that, and they will start thinking on those directions that yes, they want to do something in their lives and they want to create opportunities for thousands of students like him. So this is the responsibility on all of us. And we should talk about that what is needed to build that culture within any organization or within any university system. Although I have kept my topic startup ecosystem, that comes later, but before that, whenever a student is coming to any university, any system, what is important? It is really important to give them such kind of exposure so that they are developing three things. They are expertising in three things that we call it knowledge, KSA, I call it KSA, knowledge, skills and attitude. As we all know that knowledge, they can get it from the books. Knowledge can be obtained from any source, wherever some information is available, some data is available. It may be internet, it may be the YouTube videos, whatever. So knowledge is normally obtained in the traditional teaching learning method. But the second important component is the skills. How will they develop these skills? For developing the skills, we have to create a kind of culture, a kind of environment that may be in the form of developing good quality laboratories, developing good quality systems, creating a culture that students right from semester 1 start working in the groups, start developing the projects and start working on some ideas. Line of TMU Business Incubation Center, Ideas to Action. Students should be encouraged that they will come up with some ideas. And no idea is good and no idea is bad. Idea is always an idea. I would like to quote an example of a young boy. I think many of you may have heard his name, Tilak Mehta. कितने लोगों ने नाम सुना तिलक मेहता का? 1, 2. Oh. Tilak Mehta, when he was 13 years old, he visited his uncle's house, and when he departed from uncle's house, he left his book at that house, and next day he was having the exam. So he asked his father that I missed my book at uncle's house, what can we do? Either we should send somebody to bring that book, or I should ask the uncle to post it so that I can get it in time. So uncle was requested and uncle sent that book through a courier, and it reached after 2 days, and the total courier charges were 250 rupees. And the cost of the book was 150 rupees. So he missed the test. I mean, he could not perform. He could not study. So there was something in his mind that the problem exists in the society. Now what to do? He was thinking for finding some kind of solution. Can there be any solution that same day delivery can be done within Bombay city? So he started thinking on that. One day he found that Mumbai Dabbawalas, people are delivering tiffins in the nearby area. So he asked one of the tiffin supplier that what is your mechanism? I mean, how you are delivering? So he said that I am picking up the
tiffin from the person's house, maybe in X colony, delivering the tiffin to the office at any location in Mumbai, collecting it back the empty tiffin from the office, delivering it back on the same day in the house of the person. And he asked, what is the charge? He said, it's 1500 rupees a month. So an idea clicked to his mind that the average cost for delivering the tiffin from one place to another is 50 rupees only. Why can't we collaborate with Mumbai Dabbawala and start a kind of service which can be delivered, anything can be delivered on the same day at the cost of 50 rupees. So, to cut short the story, there is a long story. Finally, he established his organization called Paper and Parcels at the age of 40. And within 3 years, his company is 100 crores company. I mean, why I have given this example? Because ideas can be with anybody. It has nothing to do with what is your qualification, what is your family background, what is your experience. But there has to be a culture, there has to be a system support mechanism that if somebody is having an idea, that how that idea can be supported. His idea was supported by his family members. His idea was supported by his father, his uncle. Coming back to the topic, so I was talking about knowledge, skills and attitude. So skills are taught, skills are obtained by the students when they are going to the laboratories, when they are participating in the events like hackathons, they are participating in the events like exhibitions. There used to be in school days science exhibitions, then engineering exhibitions. So different kinds of exhibitions are organized by various departments, colleges, universities. So, and the most importantly, the projects. If students are exposed to projects right from semester 1, they learn lot many things. They learn how to coordinate, they learn how to lead, they learn how to, utilize the best of the resources. So they learn a lot of skills. They learn how to write a proposal, how to write a report. So a lot of things are learned by the students when they are doing the projects. And the third thing is the attitude. Attitude is the component which is not built overnight. It takes a lot of time because it is having 3 components: affective, cognitive and behavioral components. So the behavior are not able to answer. 80% of them, they are not able to answer. Their answer is, I read it through the notes. Who prepared those notes? When I was the student, my teacher has prepared the notes and he has given me the notes. I have written the notes, then I am referring those notes and I am teaching. Please see that if, let's take one example, say software engineering by Pressman, it is having 650 pages. If his teacher maybe 15 years before may have taught him with the notes having 100 pages, then he may have prepared his own notes with 50 pages. What knowledge he is delivering to the students if he himself is not reading? If you take the data, I request other university representatives also, if you take the data, how frequently the teachers are visiting the libraries? They are not. So if we are disciplined, we as a teacher are disciplined, we start reading from the books, we read comprehensively, then only we can deliver. If you see any syllabus and if you see any book, if there are 25 chapters in the book, there would be 5, 6, 7, not more than 7 chapters in that syllabus. What will happen to those 18 chapters which are not the part of the syllabus? So,
we should develop the habit amongst students to read through the books. Second point, you can't teach everything in the classroom, you can't teach everything in the laboratory, because they get 10-12 laboratories in a semester. They should think beyond. They should work something extraordinary. If they are doing programming in say C language, how many programs you can teach in the classroom? 10, 20, 50? No student can learn C programming unless they do at least 500 programs, at least 500. So they have to think on themselves. They should start working very, very hard. So we, as a teacher, our responsibility is to create a kind of culture. If we are organizing a kind of coding competition, maybe at classroom level, maybe at department level, so student will start studying comprehensively. Students study different subjects. They may be studying, say, DBMS, they may be studying software engineering, they may be studying data structure, whatever. But if you ask them to make a project, how to connect the database with the front end tool, it will be difficult for them. This can be done only when they are practicing and making the projects. So, sir just now talked about knowledge, skill and attitude. And just look at the coincidence that the 7 laws of Lord Shiva, which are also known as the laws of karma, actually talk about the same. जो बातें बहुत पहले बता दी गई हैं, अगर उन्हीं पे आज की तारीख में अमल कर लिया जाए, उन्हें मान लिया जाए, तो there can be huge difference. Sir was talking about knowledge, which is the 3rd law of Lord Shiva, that no one knows everything in this world. Hence it is imperative that the field in which we are working, the students should be motivated to gain the knowledge of that particular field. And with knowledge comes skill, as sir has already said. And along with that, finally, sir talked about the attitude. If we look at the laws of Lord Shiva, the laws talk about the attitude of positivity, the attitude of selflessness, the attitude of truth. So it was being related hence I decided that I'll be just relating to the point that sir talked about. Leaders, we are able to create new leaders. I will just give you an example. I have been a part of various programs being conducted in TMU since previous 2 years. उम्मीदें तो एक ऐसी चीज है जिसके दम पर लोग बहुत बड़े बड़े फैसले ले जाते हैं और पता ये नहीं होता कि हाथ में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। लेकिन कहने वाली जो अभी सर ने बात कही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसी की यह है कि यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब और कुछ उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सो विद दिस पोएम आप लोग एक बार ताली बजा सकते हैं अगर चाहे तो। एंड आई विल थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन बनाने की कोशिश करेंगे। आई डोंट वांट द सेशन टू बी बोरिंग बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, सो आई विल बी आस्किंग यू पीपल आल्सो टू communicate with me, interact with me regarding the latest developments in the ministry or in the office side, because as far as I know, after this there won't be any government representative, and it's all about the reason being आप लोग जितने भी काम कर रहे हैं, सर ने अभी मेहता जिनका उनका एग्जांपल दिया, आपने क्या देखा? आपने एक बात देखी कि एक आइडिया था जो कि एक स्टार्टअप बन गया, and today he has a good startup which is actually helping people, right? So to the core of innovation, to the core of incubation, to the core of entrepreneurship, we have intellectual property. आप कुछ भी करेंगे, सबसे पहले आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करें। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक स्टार्ट कर दूं, जिससे कि आने वाले वक्त में जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आप स्टार्टअप की बात करें और डिफरेंट लेक्चर्स जो यहाँ पर लिए जाएंगे, यू विल बी एबल टू रिलेट कि कहां से बात शुरू हुई थी और कहां पे खत्म होगी। सो दिस इज नीपाम, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, व्हिच इज बीइंग रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन ऑर्डर टू अवेयर पीपल। आज की तारीख में लाखों बच्चों तक यहाँ पे जो कॉलेजेस मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सेशंस कराए होंगे नीपैम के। अगर नहीं कराए हैं तो वी हैव डॉक्टर गीतांशु ओवर हियर, यू कैन कम्युनिकेट देम एंड दे विल बी टेलिंग द मिनिस्ट्री। हम लोग
आपके ऑफिसर्स भेज भी सकते हैं, एंड ऑनलाइन भी सेशंस कराए जा सकते हैं. लेट मी टेल यू ऑल, ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कराने में सर्टिफिकेट से लेके प्लेटफॉर्म से लेके एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कॉल करना है डॉक्टर गीतांशु दावर को, एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ द मेंटर मेंटी प्रोग्राम, राइट. आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. यहां पर एस्टीम्ड प्रोफेसर्स मौजूद हैं, बहुत ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है, बट द थिंग इज दैट की लेट्स जस्ट ट्राई टू dive deep into what can intellectual property be. Anything that can be produced by the human mind is intellectual property. It not only pertains to the patents, but anything produced. Whatever we are writing on this paper is our intellectual property. Whatever drawing we are making is our intellectual property. All the domains in which the human mind can go leads to the creation of a new intellectual property. Now these intellectual properties are protected with the help of some intellectual property rights. Alright? Because what happens is it becomes very easy to copy the intellectual properties and earn money. I'll give you a very good example. आप उससे relate कर पाएंगे. अमूल इंडिया का आपने नाम सुना होगा, right? अमूल इंडिया का ट्रेडमार्क ऑलमोस्ट हर कंट्री में था, कनाडा में नहीं था. बिलीव इट और नॉट, आप लोग इस चीज को सर्च कर सकते हैं. वहां पर एक चीज स्टार्ट करी गई, अमूल कनाडा, और बहुत क्लोज जानने वाले थे, आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी केस स्टडी है. अमूल कनाडा स्टार्ट कर दिया गया सर, क्योंकि वहां पर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड नहीं थी. एंड व्हाट हैपेंड इज, सबको पता है, उसके बाद में दे स्टार्टेड अर्निंग बाय द नेम ऑफ अमूल, दे स्टार्टेड अर्निंग, एंड देन देयर वर वेरी मेनी लिटिगेशंस, एंड बाद में जो कहानी हुई दैट इज हिस्ट्री. Moral of the story is, if you don't know about intellectual property and the protection of intellectual property, and the later stages, even though you produced a very good intellectual property, you won't be able to protect it. Alright? So this gives us the motive of understanding what intellectual property is. I'll just go through very fastly because I know that the esteemed professors over here must be knowing about it. Just a small glimpse. लेकिन हाँ, इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि सर हमें अपने रिसर्च पेपर को पेटेंट कराना है, या फिर कोई मुझसे कहता है कि मुझे अपने इन्वेंशन को कॉपीराइट कराना है, राइट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज वंस एंड फॉर ऑल. आप लोगों को एक बार आ गया, जैसा कि मैंने बताया, आप अपने प्रोफेसर, अपने स्टूडेंट्स तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं. नंबर 1, पेटेंट्स. पेटेंट्स आर गिवन फॉर इनोवेशंस. Patents are given for innovations. आपको any solution to the problem is known as innovation. Anyone that is writing it down may write it down. Any solution to a problem is known as innovation. अभी सर ने एक एग्जांपल बताया कि भाई पहुंचाने में टाइम लग रहा था, डब्बे वालों की मदद ली, एक इनोवेट ले. That is what, इसी से TMU बेनिफिट करेगा, इसी से आप बेनिफिट करेंगे. उस आइडिया में हुआ ये, मैंने ये बताया, मैंने कहा सर what we can do is 4th ईयर के जितने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हम उन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिन्हें हम पेटेंट करा सकें. आई विल गिव यू द आइडिया कैसे सर्चिंग करनी है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से चैट जीपीटी की हेल्प से, आज मौका नहीं है लेकिन फिर कभी मौका मिला, चैट जीपीटी की हेल्प से हम किस तरह से इन्वेंटिव डोमेन्स ढूंढ सकते हैं कि किसमें हम पेटेंट फाइल करें. Now this is something very patents are all about. ChatGPT can actually help in that, and that is what these days I am working on. मैं कई इंस्टीट्यूट्स में जाकर के ये बात कर रहा हूँ. अभी कश्मीर इंस्टीट्यूट में था. भाई फाइनल ईयर 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे इंजीनियरिंग के, वैसे इस बात पे खैर पेटेंट्स की खैर इंजीनियरिंग तक ना लगाई जाए तो बेहतर है. आप यकीन माने, MBA स्टूडेंट, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट, कोई भी हो, दे कैन एक्चुअली ऑल्सो फाइल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. बट इंजीनियरिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे करिकुलम में वो चीज मौजूद है. 4th ईयर स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी पेटेंटेड फॉर 1 ईयर एंड देन दे कैन फाइल द पेटेंट. उससे होगा ये सर कि जब वो पास आउट होंगे, दे वोंट ओनली बी लुकिंग फॉर जॉब्स, they will be holding one patent to their name so that Mahavir Institute, it will become TMU. No, they can't do that. अगर आपको इस पे एक अच्छी केस स्टडीज आपको सुनाता चलूंगा जिससे कि आपको नींद ना आए ज्यादा. एक अच्छी केस स्टडी आप जाकर के देख सकते हैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT की.
वीआईटी के और यहाँ पे जयपुर के एक इंस्टीट्यूट में ये ट्रेडमार्क के लेकर के केस हुआ था, उन्होंने सेम ले लिया था, जो इनिशियल्स आ रहे थे वो वीआईटी आ रहे थे। नहीं सर, इनिशियल्स भी अगर पहचान बन जाते हैं तो आप उसे भी नहीं कॉपी कर सकते। एनीवेज, दिस इज ट्रेडमार्क। नेक्स्ट कमिंग टू कॉपीराइट्स। यूट्यूब का जमाना है, हम लोगों को पता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपीराइट। अगर आपने एक भी वीडियो बना ली है, एक भी नॉवेल लिख ली है, कोई रिसर्च पेपर लिख लिया है, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर्स मौजूद हैं, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट्स। याद रखें, आपके रिसर्च पेपर्स कॉपीराइट में प्रोटेक्टेड होते हैं। और मैंने सर अक्सर देखा है, अभी मैं अलीगढ़ गया था, एएमयू जैसे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है एस्टीम्ड प्रोफेसर्स ये गलती कर रहे हैं कि वो पहले रिसर्च पेपर पब्लिश कर देते हैं और उसके बाद में पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। आप सर खुद सोच के देखिए, जब आपने ऑलरेडी उसे कॉमन डोमेन में डाल दिया है तो अब हम आपको उसमें प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करें। इसलिए इंपेरेटिव है, आज मैं बता के जाऊंगा आपको किस तरीके से फॉर अ वेरी नॉमिनल फीस यू कैन एक्चुअली फर्स्ट पेटेंट इट। आप पेटेंट के लिए प्रोटेक्शन कर दीजिए और उसके बाद में आप कॉपीराइट के लिए जहां पे भी अप्लाई करना चाहें अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कराएं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कॉपीराइट। देन वी हैव ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। हमारा देश सभ्यताओं का देश है। हर एक कदम पे आप 100 किलोमीटर पार कर जाइए, भाषा बदल जाती है, लोगों का पहनावा बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे जैसे लोगों का पहनावा, लैंडस्केप, बोलने का तरीका बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स बदलती चली जाएंगी। आप सोच के देखिए, पहाड़ी लोग जो होंगे उनकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी, उनके सॉल्यूशंस अलग होंगे। जो समुद्र के पास रह रहे होंगे उनके प्रॉब्लम्स अलग होंगी, उनके सॉल्यूशंस अलग होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए ये लेक्चर। अभी हाल फिलहाल में एक हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की एग्जीबिशन लगी थी। उसमें डिस्कशन हो रहा था कि जितने भी क्या कहते हैं जो जीआईज है हमारे देश के वो आए, तो महाराष्ट्र से कोल्हापुरी चप्पल वाले आए थे। कोल्हापुरी चप्पल वाले। अब आप ये समझिए कि कोल्हापुरी चप्पल, हम उसे एक नॉर्मल चप्पल समझेंगे, मगर आप सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम समझिएगा। जंगल का इलाका होता है, महाराष्ट्र के एरिया में आप जाएं, बारिश बहुत होती है, जंगल के इलाके बहुत सारे होते हैं। वहां के पुराने लोगों ने कोल्हापुरी चप्पल में कुछ डैंगलिंग सब्सटेंसेस लगाए। अगर आपने देखा हो तो उसमें से कुछ झूमर जैसा लटकता रहता है। कोल्हापुरी चप्पलों की पहचान होती है, छोटे छोटे इतने बड़े। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ सीनिक ब्यूटी के लिए है? उन्होंने कहा नहीं सर, इसके अंदर हम छोटे छोटे से पत्थर भरते हैं एक स्पेशल टाइप के। जब आप चलेंगे तो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होता है। ये साउंड इस बात को इंश्योर करता है कि रास्ते में अगर कोई जंगल में डेंजरस चीज है वो इस आवाज को सुन करके हट जाता है रास्ते से। सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, राइट। जब देखा गया कि भारत देश में ऐसी बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाई जाती और उन सॉल्यूशंस को बहुत तेजी से पूरी दुनिया में कॉपी किया जा रहा है। मैं कॉपी के एग्जांपल्स बता दूं, केस स्टडीज आप जाके सर्च करिएगा। हल्दी एंड नीम, बहुत मुश्किल से जाकर के इन सॉल्यूशंस को फिर से देश में लाया गया। इसे प्रूव किया गया कि ये हमारे देश के सॉल्यूशंस हैं। लोगों ने इसका इस्तेमाल दुनिया के बाहर करना स्टार्ट कर दिया था। हेंस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसमें इस बात को इंश्योर करा गया हमारे देश में जो भी चीजें यूनिक हैं, पहले से बनाई जा रही हैं, उन चीजों को जीआई का टैग दे करके हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीआई। देन वी हैव सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड। डू वी हैव एनीवन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स? एनीवन फ्रॉम? इज गूगल पेटेंट्स। इनपास एंड गूगल पेटेंट्स, ये दो डेटाबेसेस ऐसे हैं जिसमें आप जा करके अपनी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन आपने निकाला है उसे आप सर्च कर सकते हैं फ्रीली। गूगल पेटेंट्स पे सर्च हम लोग थोड़ा डिस्करेज करते हैं, उसका रीजन बीइंग आपका डेटा जा रहा होता है। इनपास हमारे देश का डेटाबेस है, अपना इंडियन डेटाबेस है, जिसपे आप आराम से सर्चिंग कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी डेटा जाने का खतरा नहीं होगा। ठीक है, ओके। जब आप इसमें प्रॉब्लम अपनी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे पेटेंट्स मिलेंगे। प्लीज नोट, जब आप नॉर्मल सर्च करते हैं तो क्या होता है, आपको वेब पेजेस मिलते हैं, फला वेब पेज, फला वेब पेज। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेटेंट्स मिलते हैं। और यहां से ही बात समझ लीजिए,
जितने पेटेंट्स आपको मिले अपने स्टूडेंट्स में इससे डिस्ट्रीब्यूट करिए कि तुम लोग जाकर के इस पेटेंट्स को पढ़ो। पढ़ने के बाद में उनमें जो भी चीज आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं वो चीज एक्स्ट्रा ऐड करके आप एक नया पेटेंट फाइल कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन यहां पर यह होगा कि सर पुराना पेटेंट एकदम सेम कॉपीड रहेगा। मैं आपको जवाब दे रहा हूं जी बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीटली कॉपी कर सकते हैं। द रीजन बीइंग पेटेंट में प्लेगरिज्म नहीं होता है। पेटेंट हम सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिस पे देखते हैं, नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। नॉवेल्टी मतलब या तो नया हो, किसी ने सोचा ही ना हो, चलिए मान लिया सोच लिया है। इन्वेंटिव स्टेप हो, पहले एग्जिस्टिंग था, मोबाइल फोन मेरा पहले एग्जिस्टिंग था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, आपने उसे कलर्ड कर दिया, इन्वेंटिव स्टेप। पहले कीपैड था, अब आपने उसमें टच पैड लगा दिया, इन्वेंटिव स्टेप। इट इज नॉट नॉवल, इट इज इन्वेंटिव। थिंग्स कैन बी नॉवल और दे कैन बी इन्वेंटिव। तो प्लेगरिज्म नहीं होता है एंड दिस इज हाउ यू पीपल कैन एक्चुअली प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, और बीच में जो क्वेश्चंस आए आप चाहे तो अभी भी पूछ सकते हैं और सेशन के बाद में भी क्वेश्चंस टेकअप कर सकते हैं। एनीवेज, what is the importance? You can protect, then exclude others, and then you can utilize it or you can license it to the others. हमारे देश में और देश के बाहर भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स मौजूद हैं जो रेगुलरली इन्वेंशंस बनाते हैं और उसे सेल आउट करते हैं, उसे लाइसेंस कर देते हैं। बिलीव मी, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे देश में अभी इस पे ज्यादा बात हुई नहीं है, इस वजह से लोग जनरली अभी इसके बारे में अनअवेयर है। मगर मैं कुछ प्रोफेसर्स को जानता हूं, एक यहां पर नाम मेंशन करता चलूं जिससे बात थोड़ी सी और रियलिस्टिक लगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अली। He has 7 granted patents to his name. 7 granted patents to his name. सर पूरे कॉलेज के 7 पेटेंट्स नहीं होता। He has 7 granted patents to his name. Now the question that arises is, पूरे कॉलेज से एक नहीं निकल पा रहा है और एक सिंगल पर्सन 7 कर रहा है। The reason being, कहीं ना कहीं उनको अवेयरनेस ज्यादा है, बाकी लोगों को अवेयरनेस इतनी नहीं। It's only a matter of awareness and यही वजह है कि आज मैं आपके सामने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन लेके आया हूं कि अगर अवेयरनेस हो गई तो बिलीव मी वी कैन प्रोड्यूस मेनी शमशाद अलीज फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो यहां पर मौजूद। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इन द लेटर सेशंस वी हैव टॉक्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑन स्टार्टअप्स एंड नाउ कमिंग मेनली ऑन पेटेंट्स। आपका सवाल ये होगा, ठीक है यासिर, हमने समझ लिया कि पेटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने केस स्टडीज दे दिए, अब जरा ये बताएं, एक बार हमारे पास आइडिया आ गया, हमने उसे समवॉट गूगल पे सर्च भी कर लिया, सर्च करने के बाद में हमें रिलेटेड पेटेंट्स भी मिल गए, उससे मिला जुला के किसी तरीके से हमने एक पेटेंट लिख लिया। वो बहुत अलग चीज है, पेटेंट ड्राफ्टिंग के हम एक अलग ही सेशन लेते हैं, लेकिन अभी आपको एक आइडिया दे दें कि आपने पेटेंट ड्राफ्ट कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि उसे फाइल कैसे करेंगे, क्या फीस लगेगी, क्या प्रोसीजर होगा। एक बार इसकी अवेयरनेस आ गई, याद रखिए पहले पेटेंट में ही दिक्कत होगी, पहले पेटेंट में आपको ड्राफ्टिंग में भी दिक्कत होगी, सर्चिंग में भी दिक्कत होगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी? इट इज पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। लेकिन हाँ, उतना मैं बॉम्बार्ड नहीं करना चाह रहा हूं। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल बी हैविंग एन इंटरेक्शन रिगार्डिंग दैट टॉपिक। नाउ सम इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस दैट वर मेड बाय पीपल। द फर्स्ट इन्वेंशन मेड इन इंडिया वाज दिस व्हिच वाज फाइल्ड। उस टाइम इंडियन पेटेंट ऑफिस नया नया बना था, बैक इन द डेज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये पहला पेटेंट फाइल हुआ था और पहला इंडियन ने जो पेटेंट फाइल किया था वो मिस्टर जेसी रॉय ऑफ बंगाल, उनका पेटेंट फाइल किया गया था। हालांकि ही वाजंट इन फेवर ऑफ फाइलिंग पेटेंट्स, बट स्टिल देन वी हैव सम फेमस इन्वेंशंस, थॉमस अल्वा एडिसन, फोनोग्राफ, टेलीफोन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। बिसाइड्स दिस, ये स्लाइड्स जो है ये डॉक्टर गीतांशु के पास रहेंगी एंड जो आपके मेंबर्स हैं यहाँ पर, आप उनसे भी ले सकते हैं ये स्लाइड्स। सम इंटरेस्टिंग इंडियन इन्वेंशंस। नैनो कार का डिजाइन बहुत यूनिक था, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं बना था, इतना कॉम्पैक्ट डिजाइन। देन वी हैव हेपेटाइटिस वैक्सीन एंड सर इस पे आपको थोड़ी सी रोशनी चाहता हूं आप सभी लोगों की, क्योंकि वी हैव गुड क्राउड ओवर हियर। जयपुर फूड। सर मेरा लखनऊ जाना हुआ अभी, लखनऊ में एक है शकुंतला इंस्टीट्यूट जहां पर सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ही, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए ही वो इंस्टीट्यूट है।
for blind people, for not for people who are not having legs or hands, उनके लिए वो इंस्टीट्यूट है. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट. उन्होंने मुझे टूर दिया अपने इंस्टीट्यूट का. वहां पर मैंने ये देखा, मुझे बताया गया कि 1990s में इंडियन कारपेंटर ने जयपुर फुट इन्वेंशन किया था. 1990s में आप इसे पढ़िएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा इस चीज को पढ़ के. उस टाइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी हमारे देश में. तो आप यकीन मानिए उसने जयपुर फुट एक कारपेंटर ने क्रिएट करा लोगों की हेल्प के लिए कि जो चल नहीं पाते वो चल सके. इस डिजाइन को लेकर के इंटरनेशनल जो मार्केट है वो पूरा रेवोल्यूशनाइज हो गया. और आज की तारीख में ऑलमोस्ट ऑल द प्रोस्थेटिक लेग्स दैट वी यूज आर बेस्ड ऑन द सिमिलर डिजाइन्स. अगर इस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन किया गया होता तो इंडियन इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होता और उस पर्सन को क्या बेनिफिट होता. सो बस कोशिश है कि आप लोगों को थोड़ी सी फिक्र दी जाए. सो दीज आर सम पेटेंट्स. नाउ पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे फाइल करेंगे सर? पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है. आपको कहीं किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर मारने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट अगर आप पेटेंट ऑफिस आएंगे भी यू वोंट बी एबल टू बिलीव कि ये एक सरकारी ऑफिस है. पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है. आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट पे जाकर के कुछ फॉर्म्स फिलअप करने हैं. पहले आईडी बनानी है, जैसे आप फेसबुक पे आईडी बनाते हैं. मैं इसका शायद एक लाइव डेमो ले चुका हूं टीएमयू में. यहां पर इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें एक बार आप लाइव एक पेटेंट फाइल करके दिखा दीजिए. तो हमने वेबसाइट पे उसे लाइव फाइल करके दिखाया था. ठीक है. उसमें कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं प्लीज देख लें. फॉर्म नंबर 1 वी हैव डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशंस. कौन एप्लीकेंट है, कौन इन्वेंटर है, किसने बनाया है और कौन फाइल कर रहा है. दिस इज अ बिट ट्रिकी पार्ट, क्योंकि कल को जब एक इन्वेंशन आपके इंस्टीट्यूट से फाइल होगा तो इंस्टीट्यूट वाले चाहेंगे कि हमारे नाम से हो और इन्वेंटर चाहेगा कि उसके नाम से हो. तो दोनों के बीच में एक बायलॉज का होना जरूरी है. मैंने कई इंस्टीट्यूट्स के बायलॉज बनाने में हेल्प करी है, राइट. एंड वो बायलॉज जब क्रिएट हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि इन्वेंटर को कितना हिस्सा मिलेगा और इंस्टीट्यूट को कितना हिस्सा मिलेगा. एंड अगर आपको ये लग रहा है कि इस बात पे यासिर इतनी बात क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता चलूं. सर यहां मौजूद है. गूगल कंपनी का एक एग्जांपल बहुत फेमस है. लैरी पेज ने जब गूगल सर्च इंजन का पेटेंट फाइल किया था तो वो उनकी कॉलेज के नाम से वो पेटेंट फाइल हुआ था. ही वाज द इन्वेंटर. लेकिन जब गूगल कंपनी इस दुनिया में आ गई और उसने इतना ज्यादा अर्निंग स्टार्ट कर दी, देन लैरी पेज रिक्वेस्टेड दैट इंस्टीट्यूट कि अब ये इन्वेंशन मेरे नाम पे कर दिया जाए. इन रिटर्न ऑफ दैट द इंस्टीट्यूट आस्क्ड फॉर सम 8 lakhs or 80,000 शेयर्स ऑफ गूगल कंपनी. अब आप सोच के देखें, जिस इंस्टीट्यूट के पास 80,000 या 8 लाख शेयर्स हो गूगल कंपनी के, उसे फिर किसी भी फंडिंग की या किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं, राइट. सो दैट इज द रीजन मैं इस फॉर्म नंबर 1 पे थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूं. देन वी हैव फॉर्म नंबर 2. फॉर्म नंबर 2 में एक पैटर्न होता है जिसमें आप पेटेंट हमें सबमिट करते हैं. जैसे आपके रिसर्च पेपर का एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है. आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं क्या मेथोडोलॉजी आपने अप्लाई करी, फिर कंक्लूड करते हैं. वैसे ही पेटेंट का एक फॉर्मेट होता है. उस फॉर्मेट को प्लीज फॉलो करें. मेरे पास ऐसे ऐसे इन्वेंशंस भी आते हैं जिसमें एकदम लेम लैंग्वेज में लिखा होता है कि हमने ये बनाया है, हम ये क्लेम कर रहे हैं. नहीं, देयर इज अ वे टू ड्राफ्ट अ पेटेंट. एंड अगर वो वे समझना है, मैंने सर आपको रास्ता दे दिया. आप इन पास पे जाएं, गूगल पेटेंट पे जाएं, एक पेटेंट पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा पेटेंट कैसे लिखा जाता है. कमिंग टू फॉर्म 3, जो सर की बात थी. फॉर्म 3 में आप बताते हैं कि क्या आप इंडिया के बाहर कहीं फाइल कर रहे हैं. अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको यहां पर इन्फॉर्म करना पड़ता है हमारे देश को कि हम इंडिया के बाहर भी कहीं पे फाइल कर रहे हैं या कर चुके. फॉर्म नंबर 5, डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप. इसमें इन्वेंटर्स बताते हैं कि हाँ भाई हमने बनाया है और हम इस आदमी को एप्लीकेंट बना रहे हैं अपनी तरफ से. फॉर्म नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक जितने फॉर्म्स आपने देखे, इसका टोटल कॉस्ट आता है 1600 रुपीज. पहले ये हुआ करता था 20,000. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में इसे स्लैश करके 85% रिड्यूस करके आज की तारीख में कर दिया है 1600 रुपीज
फॉर द इंडियन एप्लीकेंट, हमारे देश के जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5 आपका फाइल होगा ओनली फॉर 1600 रुपीज। इन सारे फॉर्म्स का मतलब यह है कि किसी इन्वेंशन पे आपने क्लेम कर दिया है कि ये मेरा है। अब ये ग्रांट होगा नहीं होगा ये मैटर नहीं करता, आपने क्लेम कर दिया है ये मेरा है। नाउ फॉर्म 18 जब आप फाइल करते हैं तो इसका कॉस्ट होता है 4000। जरूरी नहीं है कि आप इसे फौरन फाइल कर दीजिए, एकदम थोड़ा सा टाइम भी आप ले सकते हैं। 4 इयर्स का टाइम दिया जाता है। अब रूल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दूं, 2024 में रूल्स पेटेंट एक्ट के चेंज हुए हैं। तो जो अपडेटेड रूल्स हैं उन पे वेरियस सेशंस अभी हमारी खुद ट्रेनिंग चल रही है, उसे लेकर के जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब मैं आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। वो कहा जाता है कि जब किसी चीज के बारे में खुद नॉलेज ना हो तो तब तक उसके बारे में ना बोला जाए। सो नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर्म नंबर 18। सर फॉर्म नंबर 18 का कॉस्ट होता है 4000 जब आप श्योर हो गए कि हाँ भाई इसके लिए अब मैं ग्रांट के लिए जा सकता हूं, मुझे देखना है कि ये ग्रांट होगा कि ये रिजेक्ट होगा, तब आप 4000 रुपीज देते हैं, फॉर्म नंबर 18 फाइल करते हैं। अब यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक स्टार्टअप है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आने वाले लेक्चर्स एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पे हैं। अगर आप एक स्टार्टअप है, अगर आप एक स्मॉल इंडस्ट्री है, आप एक स्मॉल आपने कंपनी स्टार्ट करी है, तो सर आपको फॉर्म 18 फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म 18A फाइल करना है। क्या डिफरेंस है इसे समझ लीजिए, हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ द लेक्चर पे आ चुके हैं। फॉर्म 18 आपका होता है सर फॉर एग्जामिनेशन, फॉर्म 18A आपका होता है फॉर एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन, फॉर एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन। नोट कर लीजिएगा, इंडियन पेटेंट एक्ट रूल नंबर 24C, रूल नंबर 24C, आप जाकर के वहां पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए। मैं सिर्फ एक पॉइंट को उठाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई फीमेल काउंटर पार्ट्स को यहां पे मैं देख पा रहा हूं, प्रोफेसर्स को जो यहां पे मौजूद है। सर 2019 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुआ पेटेंट एक्ट में, जिसमें एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन बहुत लोगों को दिया गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को दिया गया, स्टार्टअप्स को दिया गया, एमएसएमईज को दिया गया। अलॉन्ग विद दैट एक यूनिक चीज हुई जो आज तक किसी देश में नहीं हुई थी। अगर एक भी एप्लीकेंट फीमेल है तो तब भी उस पेटेंट को एक्सपेडाइटेड रूट दिया जाएगा। आई थिंक द गवर्नमेंट डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस चेंज, एंड द रीजन बीइंग कि आज हमारे पास जब भी कोई आता है और कहता है, खासतौर से प्रोफेसर्स के सर हम थोड़ा जल्दी चाह रहे हैं हमारे इन्वेंशन को, तो उस चीज में हम उनसे कहते हैं डू यू हैव अ फीमेल इन्वेंटर? इफ यू हैव अ फीमेल इन्वेंटर, प्लीज मेक दैट पर्सन द एप्लीकेंट, you will get the expedited route. And this is very important for the educational institutions. आप लोग जब फाइल करेंगे तो आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप लोग चाहेंगे कि भाई हमारा जो इन्वेंशन है ये जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए अगर आपको एक्सपेडाइटेड रूट चाहिए तो द गुड पार्ट इज कि आपके पास अगर कोई फीमेल एप्लीकेंट है तो यू विल गेट द एक्सपेडाइटेड रूट। एक्सपेडाइटेड रूट में जजमेंट जल्दी आता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैंने फीस आपको बता दिया। फॉर नेचुरल पर्सन, स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, द फीस इज ओनली 5,600 rupees, while for any other country, while for any other institute या फिर मान लो कोई बड़ी कंपनी, they have the fees of 28,000 rupees, ठीक है। तो ये 5,600 rupees फीस हो गई है, एंड यही वजह है आज की तारीख में टीएमयू ने 1000 पेटेंट्स फाइल कर दिए, राइट। सो नाउ ये वेबसाइट है, आप लोग मैं देख रहा हूं पिक्स ले रहे हैं, लेना चाहे ले सकते हैं, वरना मैं आपको पूरी स्लाइड्स भी सेंड ओवर कर दूंगा। ये हमारी वेबसाइट है जिसपे आपको लॉगिन करके पूरा का पूरा फाइलिंग करनी है। ऑफ कोर्स आज मौका नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि एक एक करके किस तरीके से फाइल किया जाता है। नाउ दिस इज द वेबसाइट, जहां पे ये आप लॉगिन उसी तरीके से करेंगे जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन, मैं इसी चीज पे आकर के ऑलमोस्ट अपने लेक्चर को खत्म करूंगा कि भाई
स्टार्टअप के बारे में हम इतनी बात करने वाले हैं, पेटेंट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ स्टार्टअप से काम नहीं चलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप से काम नहीं चलेगा। इन सारी चीजों को जब हम एक कंबाइन करते हैं तो हम एक नॉलेज इकोनॉमी तैयार करते हैं। प्लीज इस वर्ड को याद रखिएगा, आने वाले वक्त में हमारा देश एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से, आईटी इकोनॉमी से नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ने को तैयार है। और कस्टम्स में तो हमेशा से सर्टिफिकेट की जरूरत रहती है, इसी वजह से पेटेंट ऑफिस में हम देखते हैं ट्रेडमार्क की क्वेरीज ज्यादा आती है। देन वी हैव कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स मैंने आपको बताया, वीडियोस, दीज नॉवेल्स। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है कोई? एनीवन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस? नो। कंप्यूटर साइंस के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो भी कॉपीराइट होते हैं। कंप्यूटर साइंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेटेंट होते हैं, बट उनके एल्गोरिथम कॉपीराइट होते हैं। ये मैंने एक चीज इसलिए बता दी, अक्सर आफ्टर द सेशन ये क्वेश्चन आता है। नाउ SICLD के बारे में हमने बात कर ली, GIs के बारे में, हमारे देश में दार्जिलिंग टी या फिर आप आ जाए मगही पान, ये सारे के सारे बनारसी साड़ी, ये सब यूनिक चीजें हैं जिसे GI टैग मिल चुका है और आज की तारीख में ये लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अमंग ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सिर्फ GI एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आप अकेले आके फाइल नहीं कर सकते। आपको प्रूव करना होगा कि किस तरह से हमारे हेरिडिटरी लोग, एक ग्रुप, इसे बहुत टाइम से प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में अलीगढ़ के तालों का GI हुआ, तो मुझे याद है वो ऑफिस में आए हुए थे, तो वो सिंगल पर्सन आ गए। मैंने कहा नहीं, आपको एक ग्रुप बना करके अपने आधार कार्ड के साथ में आना पड़ेगा कि हम बहुत वक्त से इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस लास्ट स्लाइड, वैलिडिटी, नो दिस वन। कुछ याद रखिएगा, मत याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, यू नीड टू फर्स्ट प्रोटेक्ट, देन यू नीड टू पब्लिश। जब तक आपका इन्वेंशन फाइनल स्टेज पे ना आ जाए या आपको एक आइडिया ना मिल जाए, प्लीज डोंट पब्लिश इट टू एनीवन। हमारे देश का नुकसान ही ये हो रहा है कि हम कॉपीराइट, हम पेपर पब्लिकेशन तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मगर हम पेटेंट पब्लिकेशन बहुत कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि लोग पेपर पढ़ करके अपने पेटेंट्स पब्लिश कर रहे हैं और हमारे देश की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। सो एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। On behalf of the entire family of TMU, I first and foremost thank the Almighty for His blessings in making today's event a resounding success. I convey deep regards and heartfelt thanks to our management, Honorable Chancellor Shri Suresh Jain Sir, Group Vice Chairman Shri Manish Jain Sir, and Executive Director Shri Akshat Jain Ji for providing a conducive environment for hosting and conducting this session. We are grateful to Honorable Vice Chancellor Professor Dr. V.K. Jain Sir for his blessings, encouragement and valuable guidance. My sincere thanks to our guest speaker Mr. Yasir Abbas Zaidi, who generously shared his insights, expertise and experience, enriching our understanding of the critical role intellectual property plays in driving innovation, creativity and economic growth worldwide. I also extend my thanks to Mr. Mahen Gupta for gracing the session. I am extremely grateful to Registrar Dr. Aditya Sharma Sir for his continual support throughout the event. I owe special gratitude to Dean Academics Dr. Manjula Jain for guidance, backing and encouragement in making this event a grand success. I thank all the Deans, Principals and Vice Principals for their august presence. A hearty thanks to Dr. Subhashini, Dean Nursing, Professor R.K. Dwivedi, Principal CCSIT, Dr. Ashen Saxena, Vice Principal CCSIT, and all the coordinators from Faculty of Engineering and CCI. फैकल्टी को इन्वॉल्व करना था, आपने बच्चे को इन्वॉल्व किया, which is some different things. Auditor has to be serious. One, second, auditor also has to be update to UPSC, OTES. This is the concept to be involve the faculty members, not the board. You are the faculty member over there? We take multiple subjects, but most of them are incubation center. Okay. That is true. You said that you are core part of the incubation team. Yes, sir. But थोड़ा सा सर आपको इसको जिसको समझने की जरूरत है,
Now, please answer some of the queries so that I can understand what I have to be delivered. सही है सर? मेरे पास ज्ञान जो है, जो पीपीटी भरी होगी, वो सुनने के लिए आगे बैठे। आपके पास भी मेरे जैसा 230 होगा। मेरे को ये समझना है कि मैं आपको क्या ऐसा बता दूं जो यहाँ से निकलने के बाद आप हमारा और आपका जो आँखों का आई कांटेक्ट है वो मेंटेन रहे, और हम दोनों यहाँ से बाहर निकलने के बाद एक फील लेके जाएं कि हमने आज एक दूसरे से कुछ सीखा। तो ज्ञान तो जो है वो गहरा है, हमें ज्ञान बांटने नहीं है और आप ज्ञान सुनने भी नहीं है। इसलिए मेरा जानना ही बहुत जरूरी है कि आपका सिंक्रोनाइजेशन लेवल क्या होगा मेरे लिए। तो आपके हिसाब से आईआईसी का पर्पस क्या है? जो स्टूडेंट्स के बीच में आइडियाज होते हैं उनको प्रोपेगेट करना, किसी बिजनेस में, किसी इन्वेंशन में या किसी भी तरीके से प्रोपेगेट करके उसे नर्चर करके आगे। आपकी जानकारी के लिए पता है टीएस कॉलेज हमारा मेंटी इंस्टीट्यूशन है, अपने कल अभी गढ़ी फुल डे जी। तो आपके हिसाब से आईआईसी का पर्पस क्या है? देखिए यहाँ वैरायटी है, आप डिग्री कॉलेज से हैं, एक यूनिवर्सिटी से हैं, राइट सर, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से हैं, वो भी एक यूनिवर्सिटी से हैं। सो यहाँ वैरायटी है, जो आपकी गैप्स है वो इनके नहीं है, जो आपके वीक एरियाज हैं वो इनके नहीं है। तो यहाँ पे वैरायटी बहुत सारी है। व्हाट क्विक आंसर, आईआईसी का पर्पस क्या है? क्यों गवर्नमेंट सरकार ऐसा सब ये सब नाम झाम लेके बैठी है? चलिए तो सर सोच लेंगे लगता है आपको। मुझे तो ये लगता है, मैं अगर आईआईसी की वेबसाइट ना भी देखूं, It's a kind of a support system for the student. सपोर्ट सिस्टम फॉर द स्टूडेंट फॉर व्हाट? For propagating the idea, or you can say the sharing the ideas. ओके Sharing the ideas. ठीक है। It's a kind of, you can say it's a platform to share the idea. ठीक है, सपोर्ट सिस्टम है, आइडिया शेयरिंग पे बहुत सारी चीजें हुई। So I think IIC helps the student thinking to convert into the design thinking to produce more job seeker. Nowadays the subject has been introduced, the design thinking, and in design thinking we study all the innovation, creativity. So it's to promote more design thinking or to convert them as a job producer. डिजाइन थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए what I feel is like probably IIC motive is to sensitize between students at the university level about innovation, startup ecosystem, about the policy central government has implemented. NIST is there, National Women Startup Policy. It is mentioned the faculty in Australia startup. And when I talk to many other faculty in other institute or university, they don't know about the NSP policy. And UP portal is there, where you can impart the startup ecosystem and you can mention these are startups who are working in particular domain, the innovation they have. Then Kapila is also there. So all these portals are integrated with the IIC to make people know about what the initiative of the government is. And this way they try to do the ranking of these people. सो पर्पस ये है कि इंस्टीट्यूट की रैंक बढ़ाने की, इस पोर्टल को इंक्रीज What I feel is like if you talk about at my end, right? So my stars are not good in the IIC, but we do a very prominent work in the domain of the startup ecosystem. We have very prominent startups over there. You must have heard of the Blue Smart and Molgerty. These startups company like UPS only. Genfor Technologies, right? When you speak about the pension box, what support you provide will come to later, right? So multiple things are startups are doing very good at incubation center, right? But what I feel is only thing is ranking. Ranking. Minister of Science and Technology, who is the pioneer in India, who started the promoting entrepreneurship culture in India.
So Ministry of Science and Technology created certain programs, certain schemes like Entrepreneurship Development Cell. Then they converted to IEDC. And prior to that, they started a program called STEP, Science and Technology Entrepreneurship Park. Then they come to the technology business incubator, and then revamp all the schemes called the Nidhi, Nidhi TBI, ITBI, and certain entrepreneurship programs. But Ministry of Science and Technology is purely focusing towards nurturing the innovation entrepreneurship in the science and technology supported institution or target beneficiaries. So they all have started, they are all doing. Then बाद में फिर अटल इंक्यूबेशन मिशन आ गया नीति आयोग का इस गवर्नमेंट के आने के बाद। दिक्कत ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये देखा कि भाई सब जगह ये सब चल रहा है, इंस्टीट्यूशन में एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन की चल रहे हैं, पॉपअप्स में चल रहे हैं। The institution who bring the government funds, they only started the entrepreneurship program. The institution who could not able to bring any sarkari money, they are not doing anything. They keep silence, idle, and the institution's motive is also not to be promote the entrepreneurship very in their root level. Their thoughts to be bring the government funds, nothing else. So Ministry of Science Education ने ये सोचा कि अगर हमें इसको बढ़ाना है इंडिया में, तो इसको एजुकेशन के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। और जो सारे इंक्यूबेटर जो चला रहे हैं इंडस्ट्री से, उन सबका एक प्रॉब्लम ही है, प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर कुछ और कहता है और इंक्यूबेटर मैनेजर सीईओ कुछ और कहता है। तो इंक्यूबेटर्स के लोगों का थॉट प्रोसेस एकेडमिक से मैच नहीं करता। जब मैच नहीं करता तो चीजें होंगी कैसी, आप समझ सकते हैं। आप अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक मैकेनिज्म बनाया और सबसे सस्ता मैकेनिज्म बना दिया। उसने कहा कि भाई सब लोग आईआईसी खोलना चाहिए, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल खोलना चाहिए। तो पहला सेंटर के नाम पे आपके पास टप्पा लग जाता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो लोग हैं, today is vice chairman or the Deepan Sahu or the team, they very well known about the academics कि academic के लोगों को एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट आप उठा के दे दीजिए और आप उनसे पैसा खूब निकलवा लीजिए। और ये उनका बड़ा फॉर्म बिलीव है कि सरकार ना इंस्टीट्यूशन में पैसे बहुत है, ये उनका फॉर्म बिलीव है और वो सत्य भी है। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली इंस्टीट्यूशंस को इसमें इन्वेस्ट कर दिया। जो इंस्टीट्यूशन नहीं आना चाहते थे उन्होंने कहा भाई एफिलिएशन का प्रोसेस है तो आपको आना ही पड़ेगा। जो इंस्टीट्यूशन ने सोचा था कि हमें इससे जरूरत नहीं है, उन इंस्टीट्यूशन को कड़वी दवाई देने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया। अब आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम कर दी। प्लस उन्होंने क्या कहा कि भाई तुमको मैं रैंक करूंगा, एक तो स्टार रेटिंग है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, एंड दूसरी जो नेशनल आर्या रैंकिंग है, अटल इंक्यूबेशन इनोवेशन अचीवमेंट्स ऑफ इंक्यूबेशन करके, उसको उन्होंने एनआईआरएफ इनोवेशन बना दिया। अब आपको वो एनआईआरएफ में इवैल्यूएट करने लगे। अब आप कॉलेज में छोड़ नहीं सकते जो अभी तक प्रिंसिपल मैनेजमेंट और कहता था कोई जरूरत नहीं, सब करने की सत्य पढ़ाओ। So I was engaged with this phenomena in the year 2006. So ये इसलिए मैंने आपको जानकारी है, मैंने इसके आपके सामने रख दिया। नीति आयोग की क्या स्कीम है, बीएससी ने क्या बनाया था, कौन देखता था, कैसे देखता था, सब चीजें। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो आईसी का प्रीमियर जो फंडामेंटल है कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई इंस्टीट्यूशन के अंदर सरकार ने जबरदस्ती एक चीज लेकर के वो आ गए। अरे रिकॉर्डिंग का सेशन थोड़ा सा मेरी भाषा अच्छी नहीं है। 2015 से इसके पहले से आप देख सकते हैं क्या है, मैंने यहाँ से ईवे ज्वाइन करा, इसके पहले केआईटी का इंक्यूबेटर मैं देखता था। और अब लोग का भी आईटी के सेक्शन है। मुझे बात पहले मित्तल साहब जो थे मेरे गुरु कह रहे तो टीबीआई ले ले, मैं सर मारोगे क्या मुझे? टीबीआई लेने का मतलब यह है कि 20-25 करोड़ की फंडिंग है ना, मैंने में आदमी पागल हो जाएगा भाई।
वो इस समय स्ट्रीट सपोर्ट के चेयरमैन है, स्ट्रीट सपोर्ट स्कीम। उससे बोले तुम 2 करोड़ रुपये ले लो, ठीक है सर, नहीं चाहिए। सरकार का पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, ये निर्णय आ सकता है। ये कुछ इम्पैक्ट है, 30 से ऊपर स्टार्टअप्स हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब दिन आप ना मतलब अभी आप सिस्टम बना रहे हैं, ये सब मेरे पास, अब मेरे पास ये आउटकम है, नहीं तो मेरे पास फेलियर स्टोरी बहुत सारी थी। बच्चा आया, बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हो गया, ऐसी स्टोरी भी बहुत सारी है, और मैं उनको भी आज बुलाता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, जिस बच्चे ने हमसे हमारे साथ काम किया, इंक्यूबेशन में काम किया, कुछ भी किया, फेल भी हो गया ना, तो सेकेंड राउंड ऑफ मेगा सक्सेस में जिस बच्चे की बात करें, सर्विस गौतम की, जो प्लांट रंटिंग का काम करता था, कोरोना में सब बिजनेस खत्म हो गया, झांसी जाकर उसने बिजनेस दोबारा स्टार्ट किया। आज वो बच्चा घर पे, अपने घर पे रहते हुए कम से कम 1.5 लाख रुपए कमाता है झांसी में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। वो सर्टेन नंबर ऑफ वेजिटेबल्स उगाता है जिसको वो झांसी के रेस्टोरेंट में सप्लाई करता है। अमन जान एक बच्चा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिजनेस कोरोना में फेल हो गया, वापस गया, 6 महीने 1 साल 1.5 साल के बाद मेरे को बोलते सर जूते खरीदने को बताना। क्यों, क्या करा तूने? बोला सर मैंने ना जितने कॉन्टेबल है मैंने उनको ले लिया, मैंने एक पोर्टल बना के लॉन्च कर दिया। तो पॉइंट ये है कि आप उसको ना बिजनेस में सफलता की गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन आप उसको करने वाली जो भी चीजें हैं आने वाली, वो आप बना रहे हो। क्लियर आ रही है से? आप देखिए, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बोला कि बिजनेस कैसे बनता है, कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, ये आपका प्राइमरी रोल है। एक इंक्यूबेटर ये सर्विसेज ऑफर करता है मोटे मोटे रूप से। उसमें एक छोटी सी लैबोरेटरी जहाँ पे वो कुछ हैंड्स ऑन कर सके, कुछ बनाना चाहता है, कुछ ट्रेनिंग जैसे सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी, बिजनेस मॉडल के, और ये आईएसी में देखिए ये सब तो है। कैलेंडर एक्टिविटी डिफाइन है, क्वार्टर 1 में ये करना है, क्वार्टर 2 में ये करना है, क्वार्टर 3 में ये करना है, क्वार्टर 4 में ये करना है। 2 फेज प्रोग्राम है। 2 फेज प्रोग्राम क्या है कि हाउ ए टीचर कुड बी एन एंटरप्रेन्योरियल टीचर, how a teacher could be an entrepreneurial teacher. So what is an entrepreneurial teacher? The entrepreneurial teacher is like you, जिसने कहा चलो ठीक है यार ये नया चीज़ें सीखने जाएंगे, आप भी कुछ बहाना बुन करके गायब हो जाते। So entrepreneurial teacher क्या है? जो अपना सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन वो जीवन भर साथ रहते हैं या समय के साथ रहते हैं, अभी कनेक्टेड है। आप सरकार में सरकारी टीचर को बच्चे आगे पार चुके, मैंने देखा कि लोग कल 20,000 के बाद में पढ़े यार, हमारे यहाँ तो नहीं होता है सर, हमारा तो कहता सर हेलो सर कैसे, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई सी इन द व्हाट मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कि भाई नीड टू नर्चर द स्टूडेंट थ्रू ट्रेनिंग, आइडिया इज अवेलेबल, ये सब है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, आइडिया अवेलेबल है, कमर्शियल वायबिलिटी आपको देनी है। स्टूडेंट डोंट हैव अदर बिजनेस स्किल्स, स्टूडेंट के पास आइडिया है, कमर्शियल वायबिलिटी भी हो सकती है, उसके बाद ये स्किल सेट नहीं है, उसको ना तो मार्केट पता है, ना मटेरियल पता है कैसे बनेगा, ना ये पता है कि पैसे कौन देगा, ना ये पता है कि मशीन कहाँ पे है, ना ये पता है कि यार मैं किसी और को भी जोड़ सकता हूँ। बिजनेस इंक्यूबेटर क्या चीज है ये समझिए। बिजनेस इंक्यूबेटर के 2 जो प्रोग्राम है, प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन प्रोग्राम। बिजनेस इंक्यूबेटर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इससे प्रोग्राम, इससे स्ट्रक्चर प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या, जैसे आपका कोर्स है, एक पर्टिकुलर कोर्स आप डिजाइन करते हैं ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम या रेगुलर कोर्स, उसका कुछ पर्टिकुलर आउटकम सेट है ना, वैसे ही है। प्री इंक्यूबेशन बच्चों के लिए है, नॉन रजिस्टर्ड कंपनी के लिए। इंक्यूबेशन में कोई भी अगर एंट्री लेगा तो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा के ही आएगा, सिंपल। कंपनी से पहले को का जितना भी काम है वो प्री इंक्यूबेशन में आता है। वो आइडिया सिलेक्शन करना हो, उसका बिजनेस मॉडल बनाना हो, उसमें फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करना हो, सारी चीजें। अब ये जो वैल्यू ऑफ डेथ है, इंक्यूबेटर की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चा जैसे बाकी लोग बिजनेस करते हैं, बच्चा भी बिजनेस कर सकता है, या वो भी जब पास आउट हो जाएगा तो उसको जरूरत होगी तो बिजनेस करने लगेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट ये है कि यूथ इस डोमेन में आए। क्यों आए? क्योंकि हमारी पॉलिसी स्ट्रक्चर सही नहीं है, हमारे पास ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे जो वाकई में इन्वेंशन नहीं कर सकते,
ग्राउंड लेवल पे जाकर के देख करके पॉलिसी नहीं बना सकते, वो यूएस को और चाइना, जापानी और फ्रांस और बाकी कंट्रीज को देख करके पॉलिसी बनाते हैं। इसलिए ऐसे गधे लोगों के साथ हम काम करते हैं। तो समझने की चीज ये है कि भाई ये जो वैल्यू ऑफ डेथ है, जो बच्चे हैं हम उसको नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो ये फ्लेवर नहीं ले ना। बच्चा जब ये करने आता है, वहां पे बनने आता है या इंटरप्राइज लॉन्च करने की बात करता है, अभी सीधे इंटरप्राइज लॉन्च की बात हो रही है, स्टार्टअप्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले दिन से जब वो आइडिया में काम करना स्टार्ट करता है तो उसको पैसा तो आता नहीं है, तो अपनी जेब से पैसा लगाता है। फिर ये FFF लिखा है ना, फैमिली फ्रेंड्स एंड फूड्स, इससे पैसा लगाता है, पिताजी से पैसे मांगता है, माँ से पैसे मांगता है, मामा से पैसे मांगता है, बीवी से पैसे लगाता है, लेकिन यहाँ से कमाता नहीं, क्योंकि आइडिया से लेकर के प्रोडक्ट को मार्केट होने तक में, जाने तक में, सर्विस को जाने तक में उसको सर्टेन टाइम लगता है। अगर कंपनी, स्टार्टअप कंपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में सही समय से, जल्दी से यहाँ से नहीं निकल पाई तो वो कंपनी डूब जाती है। कैसे डूब जाती है? आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, आपको जहां से गवर्नमेंट से कमिटमेंट था वहां से पैसे नहीं आए, आपकी टीम छोड़ के चली गई, आपका फाउंडर को फाउंडर छोड़ के चला गया, तो ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, तो बहुत सारी चीजों की वजह से बिजनेस डूब जाता है। इंक्यूबेटर का काम ये है कि उसके स्टार्टअप्स को इस वैली ऑफ डेथ से जल्दी बाहर निकालेंगे। यहाँ तो जाना ही है उसको, लेकिन यहाँ फंसे नहीं, तो उसको राइट मेंटरिंग, राइट फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट सपोर्ट सिस्टम, गाइडेंस, कनेक्टिविटी, मार्केट अवेलेबिलिटी, ये सब दे ताकि वो यहाँ से यहाँ निकले फटाफट, और ब्रेक इवन पॉइंट पर पढ़ाते हैं ताकि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच पाए। ये प्री इंक्यूबेशन स्टेज। अब आप देखिए, इस प्री इंक्यूबेशन स्टेज में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लीगल कंपनी चाहिए, हम नहीं लेते, लेकिन इस प्री इंक्यूबेशन में लोगों को तैयार करने के लिए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, which name is called the Founders Camp। Founders Camp एक प्रोग्राम है जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है, वो 3 महीने का ये प्रोग्राम है, आप ये ज्वाइन करें और सब कुछ सीखे। लेकिन आप ये देखिए, प्री इंक्यूबेशन स्टेज में फंडिंग हो रही है, गवर्नमेंट ग्रांट इन अवेलेबल है प्री इंक्यूबेशन स्टेज में। आज की डेट में 2 लाख से 10 लाख यूपीएससी वाले भी देते हैं, इनको पकड़ के रखिएगा। डीएसटी का आईटी पे प्रोजेक्ट चलाते हैं, हम भी देते हैं, टीएमयू वाले भी देते हैं, गीतांशु मैम के पास भी है। तो यहाँ पे इनोवेशन फंड है, इसको बोलते हैं इनोवेशन फंड। सेकेंड, बहुत सारे इंडस्ट्री इनोवेशन चैलेंज निकालती है, वो यही पे आता है। सब प्री इंक्यूबेशन स्टेज, जहां बिजनेस को करने के बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और ये सब चीजें आप सीखते हैं। क्लियर है? ये इंक्यूबेशन स्टेज में जहां पे अब भाई लीगल एंटिटी है, कोर्ट धंधे पानी की बात होने वाली है। डन है सर? ये सब इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, बहुत आराम से। मेरे ही से पर आपकी एक्सप्रेशन हमेशा तो अवेलेबल नहीं होगी ना। अब एक चीज आप समझिए, नॉलेज इनोवेशन बेस्ड एंटरप्राइज क्रिएट करने की बात हो रही है। नॉलेज इनोवेशन, और एक नया टर्म यूज कर दिया गया अभी भी इसमें, डीप टेक। एआई हमारे पास मतलब पैसिव ब्रांच है, और मैं आपको बता दूं, हम कोरोना की वजह से ना जबरदस्ती थोड़ा सा मतलब टेक्नोलॉजी आगे चली गई, हम पीछे रह गए। कोरोना की वजह से हम जैसे जैसे धीरे धीरे सीखते हैं, वो सीखने की जगह में वो सीधे जंप इन हो गया हमारा। डीप टेक में इंडिया में बहुत कुछ काम बाकी है, धरातल अभी तैयार नहीं, तैयार हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये है। अगर कोई कंपनी इंक्यूबेशन पीरियड एक पीरियड में, याद जैसे मेरा इंक्यूबेशन पीरियड 2 साल का हमने रखा हुआ है, 1 साल हम 6 महीने का एक्सटेंशन देते हैं कंपनी को, बट मैक्सिमम 3 साल माना गया है। कोई कंपनी अगर 3 साल में ग्रो नहीं कर पा रही है, चल नहीं पा रही है, इसका मतलब कुछ दिक्कत है। आइदर फाउंडर ठीक नहीं है, टीम सही नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, बहुत कुछ रीजन है। तो हम लोग बाय फोर्स कंपनी को बाहर हटा देते हैं अपने इंक्यूबेटर से। इंक्यूबेटर बिजनेस स्पेस नहीं है। इंक्यूबेटर और हॉस्पिटल, होटल और हॉस्पिटल में जो डिफरेंस है, हॉस्पिटल में आप जाते हैं जब आपको जरूरत होती है, जब आप बीमार होते हैं। होटल में आप कभी भी जाके रह सकते हैं, पैसे दीजिए, आराम से 1 महीना रहिए, लग्जरी 5 स्टार में, कोई नहीं पूछने वाला। वही चीज इंक्यूबेटर में भी है। और बिजनेस स्पेस में हम बिजनेस पार्क के बिजनेस सेंटर नहीं है कि कोई भी आया और ऑफिस लिया और आराम से रह रहा है, रेंट दे रहा है, आराम से रह
रहा है, नहीं। हमारे थॉट से, हमारे सर्विसेज से, हमारे सपोर्ट सिस्टम से और उसकी रिक्वायरमेंट की क्या है ये मैच होना चाहिए। अगर हम ऐसी कंपनी, मुझे लगता है कि यार इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये कंपनी सेक्टर 62 में आराम से ऑफिस लेके 50,000 रेंट दे सकती है, मैं इसको 20,000 वाला क्यूबिकल नहीं दूंगा, इसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं, तो मैं उसको ऑनबोर्ड नहीं करता। ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इंक्यूबेशन एक और टर्मिनोलॉजी इसको ना पोस्ट इंक्यूबेशन, जो मैंने आपको देखा ना समृद्धि प्रोग्राम, एक्सेलरेशन प्रोग्राम, ये पोस्ट इंक्यूबेशन, क्योंकि कंपनी को भी ग्रो करना है, लेट्स से उसको इंटरनेशनल जाना है, कैसे जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सबके लिए नोट है और आपको मैनेजमेंट को कन्वे करने की भी जरूरत है। इंक्यूबेटर का काम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना नहीं है, इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स को क्रिएट करता है, वो इनकम एसेट्स सब क्रिएट करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। The entrepreneur in the time to come, and you know that the government of India is promoting day and night for making the students, for making the country self-reliant, and the steps being taken by the educational institutions in this direction in the form of having the incubation centers at their campuses and nurturing the ideas of the students, supporting them in a way that they can start their own startups. It is a good step and it's a good initiative, and it's this mentor-mentee program. I do not think that just we are the mentor and you are the mentee. It's not like that. It's simply a term to use, but the fact is that this program like this provides a platform and opportunity wherein we can exchange the ideas with each other, what we have gained with our experiences, with our activities, and what you have gained. We can exchange our ideas, because the people working over here at one organization are coming from different walks of life. You people are coming from different walks of life. You have faced certain different kind of situations to establish your incubation center, and the students who are being nurtured or incubated by you might have faced some different kind of challenges than the students, those who are working here and the incubation center. So it is like a platform where you exchange your experiences and enhance the knowledge of each other. So do not take this session only as a mentor-mentee program. It is like that we are here to exchange with each other, to gain our knowledge, to enhance our knowledge. That is the main objective of this program, and I'm sure that this is a 2 days program. Yes. So I'm very sure that during these 2 days you'll be having good insight of what all practices are being done here by our team, and this will also give the opportunity to our team also to understand what practices you are following in your campus, and I think we can take this this initiative forward for ultimately for the growth of the nation, because the economy of the country depends ultimately upon the kind of product we are producing. So this is a good initiative, and we should put all our best efforts in making this initiative a great success. Thank you. Thank you so much, sir, for. तो यहाँ पे प्राइमरली विजन नहीं रख रहे हैं अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस के लिए प्राइमरली उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम ही है, बट व्हाट्सएप आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसमें से कि आप वहाँ पे नर्चर कर सकते हैं लीड को। व्हाट्सएप नॉट नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस, here you can use WhatsApp API. As you know, Meta ने अपना WhatsApp API लॉन्च कर दिया है for the small scale business also. हाँ जी। So वे WhatsApp API आपको कहाँ हेल्प करेगा? Facebook, Instagram के थ्रू आप अपनी कैंपेन रन करें, उसके बाद जब कैंपेन के थ्रू आपको इनबाउंड लीड आएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी Facebook, Instagram से हमारे पास लीड जनरेट होती है, वो आपकी डायरेक्ट सेल के लिए नहीं होती है, कि जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई या फिर जो भी डिटेल्स शेयर करी कंज्यूमर ने लीड के थ्रू, वो आपका एक दूसरे परचेज कर लेगा। दिस इज इनबाउंड लीड, उसने खाली अपना इंटरेस्ट शो करा है आपको आपके कंटेंट में, आपके जो आपने ऑफर किए, बट अभी वो परचेज की तरफ नहीं गया है। परचेज की तरफ कैसे जाएगा? जब आप WhatsApp API पे या फिर उसे कोई चैनल देखें कम्युनिकेट करने का। अब कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 24/7 उस पर अवेलेबल रहें। सो आपको यहाँ पे एक ऑटोमेशन चैनल चाहिए लाइक WhatsApp API,
ताकि आप उसको नर्चर कर सके और जो भी उनकी क्वायरी है कस्टमर की, फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कस्टमर ने जो भी आपने इसको ऑफर डाला है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, कस्टमर को अच्छा लगा, नाउ दे वांट मोर अबाउट इट, ठीक है, अब वो व्हाट्सएप एपीआई पे आएगा, उसके जो भी क्वायरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, वो उसके बाद पूछेगा, वो पूछने के बाद परचेज बैक चला जाएगा, अभी वो परचेज नहीं करेगा आपसे। सो व्हाट्सएप एपीआई आपको प्रॉपर डेटा देगी, नर्चर करके दोनों वे पे आपको हेल्प कर रही है, कस्टमर वाइज पे भी और आप पे भी। देन आपके पास जब डेटा आ रहा है, आपको रीटारगेटिंग पे जाना है। सो व्हाट्सएप एपीआई एंड व्हाट्सएप चैनल इज वेरी यूजफुल फॉर मैनेजिंग द कस्टमर इनबाउंड लीड्स। सर आपके कुछ ऐसे प्लान्स हैं स्टार्टअप्स के लिए, कुछ बेसिक प्लान्स हैं? यस सर। क्योंकि मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स दे डू नॉट अफोर्ड टू, सो व्हाट इज द बेसिक दैट दे कैन स्टार्ट विद, और हाउ कैन दे बी देयर इन द मार्केट विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द मार्केटिंग एजेंसीज एंड नॉट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन दैट? हाउ कैन मैम बेसिकली जैसे आज आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, सो मेन पर्पस क्या है यहाँ पे कि एक हमारी मिलना होगा एक दूसरे से, कभी सोशलाइज होगी, नेटवर्किंग होगी, है ना, तो सोशल मीडिया इज आल्सो अबाउट दैट। आपको सोशल जरूरी नहीं है आपको एक हाई टिकट, आपके पास बजट है, आपके पास काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है बर्न करने के लिए, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सी आप जिस मार्केटिंग की बात करें जहाँ पे हाई बजट आता था वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, बट इट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में मेन आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपने आपकी बिजनेस ब्रांड या जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप प्रमोट कैसे करेंगे उसके बारे में बताते, और बताने का कोई क्वेश्चन नहीं है। फेसबुक इंस्टाग्राम कोई भी चार्ज नहीं लेता है आपसे कि आप अपने कंटेंट को या फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताने के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा, नहीं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसे प्रमोट करना है। इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। आपको सोशल मीडिया पे सबसे पहले अपने कंटेंट को पब्लिश करना है, बिजनेस पेजेस क्रिएट करने हैं, देन आपको आइडेंटिफाई करने हैं सारे एनालिटिक्स। मेरा क्वेश्चन यही है, यहाँ पर आकर बहुत सारे स्टार्टअप अटक जाते हैं कि प्रॉपर कंटेंट नहीं जा रहा, वो रीच उतनी नहीं हो पा रही है, जिससे यू पीपल कैन डू इट वेरी वेल, बट अ कॉमन लेमैन उसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो लेट्स से इफ आई हैव द मैम इज टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक ग्रोथ, या सो व्हिच इज उसमें बहुत टाइम भी लगता है ना। सो लेट्स से आई हैव अराउंड 30,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, राइट, तो मुझे उसको एक्सेस करने में, अपनी विजिबिलिटी क्रेडिबिलिटी बनाने में इट विल बी 1 year's time to reach there, right? But lot of startups who come to me, they ask me this question कि मैम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हमसे इतना पैसा मांग रही है which we cannot afford, हम अपने आप से क्या कर सकते हैं? वहाँ पर कमी कहाँ देखती हूँ मैं, कंटेंट ठीक नहीं है, या जो या क्लैरिटी उनके क्रिएटर्स में होगी, पिक्चर्स में होगी, वो एक कॉमन स्टार्टअप नहीं कर पाता। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? हम सॉल्यूशन बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, जैसे कि आपने बोला कि स्टार्टअप इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। इन्वेस्ट वो अगर एक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं होगी, अगर वो सोशल मीडिया पे अपने कस्टमर्स को रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इसमें एक रीजन है, यहाँ पे उनको बड़ा बजट नहीं चाहिए, बहुत एक बेसिक थिंग है। अगर आपको जैसे कि नॉर्मल कन्वर्जन रेट क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी इंडस्ट्री में, 1%, 2%, मैक्सिमम 3%, लेट्स टेक 1%। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं थ्रू द सोशल मीडिया, कोई भी कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं आप, सो फॉर एग्जांपल उसकी बेसिक रीच कितनी आएगी अगर आप कुछ भी कंटेंट ऑर्गेनिकली लॉन्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लाइक 100, 200, 300, 400, आप उसका कन्वर्जन क्या समझ रहे हैं? अगर 300 रीच कर रहा है तो उसका कन्वर्जन मींस 1%, इट विल अराउंड 1, 2, दिस इज नथिंग। तो वो रीच नहीं कर रहा है, सो कैसे आपको कन्वर्जन देगा किसी भी सेंस में, चाहे वो आप इंटरेक्शन हो, एंगेजमेंट हो, या फिर बिजनेस आया हो उससे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीच गैदर करनी है। रीच गैदर करने के लिए मैम आपको सबसे पहले जरूरी है बहुत बेसिक अमाउंट पे आप स्टार्ट करें सोशल मीडिया पर। आप अपनी बेसिक अमाउंट इज पर डे 200 रुपीज। अब अपनी एजेंसी को बजट बताएं। बेसिकली मैम एजेंसी की प्रॉब्लम मानता हूँ कि एजेंसी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है, बट प्रॉब्लम दूसरी तरफ ये भी कि क्लाइंट समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, या फिर मैं सोचता तो एजेंसी समझा नहीं पा रही है। दोनों तरीके हो सकते हैं। बेसिकली बजट इसमें लगता ही नहीं है, पर डे 200 रुपीज स्पेंड है मिनिमम, आप उससे भी कम कर सकते हैं। And this is for how many platforms you're talking about? All platforms? मेटा, स्पेशली फॉर मेटा। हाँ जी, सी अगर एमएसएमई है तो मेटा के अलावा आई डोंट थिंक सो कि उसे किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, क्योंकि मेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसका 90% अगर मैं 755 मिलियन यूजर्स की बात करूँ तो 90% जो यूजर्स है वो सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। सो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मेटा ही है, सो मेटा के थ्रू जाना चाहिए। एंड अगर आप किसी भी एजेंसी के साथ या किसी भी थर्ड पर्सन पार्टी के साथ काम कर रहे हैं जहाँ मार्केटिंग के लिए, जहाँ स्टार्टअप ओनर,
सो आप उनको अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि मेरा ये बजट है, पर लेट्स से 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, 400 रुपीज़ मेरा ये बजट है, मेरी ये मार्केट है। एक्चुअली आप क्लाइंट जैसे एजेंसी से मिले या किसी भी मार्केटिंग कंसल्टेंट से मिले, उसको पहले आप ये मत बोलिए कि मेरे को सेल्स के लिए काम करना है। आप उसको बोले पहले लेके आप मार्केट आइडेंटिफाई करके लीजिए मेरा बेस्ट कस्टमर कौन है, ठीक है। आप खाली अवेयरनेस पर वर्क करें। स्टार्टअप्स को, स्मॉल बिजनेस, स्केल बिजनेस को सबसे ज्यादा अवेयरनेस पर वर्क करना चाहिए, परचेज नर्चर की तरफ नहीं जाना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स और ऐसे फर्स्ट ईयर जो होता है स्टार्टअप का, जो है वो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करता है, जस्ट वर्क विद द अवेयरनेस। आप अवेयरनेस के साथ स्टार्ट करेंगे, आपको सिंपल रिजल्ट शो होंगे। उसमें आपको सेल्स बिजनेस, आप उससे कुछ भी आप मुझसे बोलिए मुझे नहीं चाहिए आपसे सेल्स, मैं सेल्स अपने आप निकाल दूंगा, मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे बस रीच चाहिए। रीच पूछ रहा था बेसिकली आपके कुछ प्लान्स हैं? यस सर। आप थोड़ा सा मतलब लेटर से अगर नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू मेक सम बेसिक प्लान्स फॉर दिस स्टार्टअप। श्योर सर, मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी हमारे सेशन चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करता है, बट मैं आपको इसके प्लान्स भी शेयर करता हूँ। लेटर से आई कनेक्ट विद योर मार्केटिंग एजेंसी, मेरा स्टार्टअप कनेक्ट करता है, तो आप कैसे मतलब आई कैन गाइड देम फर्दर, मतलब आपका नंबर दे सकता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बता सकते हो? आई कैन, जैसे मेरा सीए है राइट, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट दे के अराउंड 25,000 फीस फॉर द एलएलपी और समथिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने अपने सीए के साथ 8,000 फिक्स कर दिया। तो अगर कोई भी स्टार्टअप जाएगा यू विल नॉट टेक मोर देन 8,000 राइट। सिमिलरली आपका कंप्लायंसेस के लिए 5,000 रुपये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो वैसे अगर आप मुझे कुछ बेसिक प्लान शेयर कर सको अभी बता सकते हो थोड़ा सा, और या फिर आप मुझे ईमेल भी कर देना। सो सर प्लान्स के बारे में बता रहा हूँ, मॉनिटरिंग हम डिस्कस करके होगा। प्लान्स इसमें कैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करते हैं क्लाइंट की इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ केस स्टडीज बताता हूँ, कुछ आपके एग्जांपल शेयर करता हूँ सर, है ना। अभी मैंने रिसेंट में एक क्लाइंट ऑनबोर्ड करा है जो न्यूट्रिशन है, उनकी न्यूट्रिशन ब्रांड है, वो कंसल्टेंसी देते हैं क्लाइंट्स को ऑन कॉल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई का कोई क्लाइंट है जिसको हेल्थ रिलेटेड डाइट प्लान्स चाहिए, तो वो सिंपल गूगल मीट के थ्रू अपनी सारी कंसल्टेंसी देते हैं, उसका वो चार्ज मंथली वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, 7,000 6,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। सो उन्होंने मेरे को रीच करा कि ऋषभ मैं बहुत टाइम में सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग पे ट्राई कर रही हूँ, लाइक उन्होंने गूगल पे भी ट्राई करा, सोशल मीडिया पे ट्राई करा, जैसे मैम ने कहा कि हमने स्पेंड कर चुके हैं बट अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। सो कैसे आप हेल्प कर सकते हो? मैंने कहा मैं समझ गया, आपका जो बिजनेस है आपका सर्विस बेस है, ठीक है, आपको बस आपकी राइट ऑडियंस तक टारगेट करना है, लीड आपकी अपने आप ही कन्वर्ट आने का वैसे ही। अगर लीड पे भी वर्क करेंगे तो तब लीड की तरफ बात करेंगे। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, आप राइट ऑडियंस से टारगेट नहीं कर पा रहे, सो 3 मंथ्स लेते हैं, 3 मंथ्स हम अवेयरनेस पे वर्क करेंगे। हम आपसे हाई बजट लेंगे, पर डे आपके 200 रुपीज़ का बजट लेंगे, 200 प्लस 8% GST जो उसके ऊपर अवेलेबल होता है एड्स के लिए। हमने उनको बेसिक प्लान दिया 12,000 रुपीज़ का, जिसके अंदर हमने सोशल मीडिया एंड गूगल एंड 1 ब्लॉग ऑन मीडिया। हाँ जी, हमने इससे अपनी सर्विस स्टार्ट करी है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करें कंटेंट, एंड इसके अंदर जो कंटेंट जाता है वो इनबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं बेसिकली उसे। कंटेंट आप ही क्रिएट करते हैं? यस सर, कंटेंट हमारी प्रॉपर टीम है वो कंटेंट क्रिएट करती है। इनबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं बेसिकली इसे, जब हम अवेयरनेस पे वर्क करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है कि जहाँ पे आपको अपने कस्टमर्स को रीच करना है थ्रू द ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म, थ्रू द ऑर्गेनिक, आपको कोई भी पेड एड्स रन नहीं करने। पेड एड्स आपको तब रन करने जब आपके पास इंटरेक्शन क्रिएट होता है। इंटरेक्शन मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके 3 दिन हो गए, आपने एक पोस्ट क्रिएट कर दिया है, कॉन्टेंट है, वीडियो है, आपने वो पोस्ट करा है, आपके पास अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, क्वेरीज क्रिएट हो रही है, लोग पूछ रहे हैं कि पता है इसके बारे में, वो है बेस्ट टाइम आपकी आप अपना ऐड पुश करें। मतलब आप ट्रैक्शन कन्वर्जन में देख रहे हो या सिर्फ लाइक्स और उसमें देख रहे हो? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर मेरे पास आ रहा है, रीच कर रहा है, उसको काउंट करोगे पेड एड्स के लिए, या फिर आप जो लाइक्स हैं पीपल आर लाइकिंग मोर ऑफ योर कंटेंट? बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर लास्ट 7 मंथ्स में जो एल्गोरिथम चेंज हुई है सोशल मीडिया या गूगल की, लाइक्स एंड फॉलोअर्स का गेम अब बिल्कुल खत्म ही हो गया। हाँ जी, अब सिर्फ गेम्स लगे जो कीवर्ड्स होते हैं, चाहे वो कमेंट्स पे हो, चाहे वो कस्टमर डीएम कर रहा है, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एल्गोरिथम भी इसके हिसाब से इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल इफ आपने कोई अपनी पोस्ट क्रिएट करी है सर्विस के रिगार्डिंग कि हमारी सर्विस ये प्रॉब्लम पे वर्क करती है, एंड किसी ने उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी चाहिए कि मैं प्रॉब्लम तो मैं भी फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे और जानना है कि आप इसका सोल्यूशन कैसे देते हो। तो ये बहुत अच्छा कमेंट है आपके लिए, आपके प्लेटफॉर्म्स के लिए। उसी प्लेटफॉर्म उसी चीज़ पे आपको अपने एड्स रन करने चाहिए।
सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी एक ऑर्गेनिक रीच बनाएं, और ऑर्गेनिक रीच पे कैसे इंटरेक्शन आ रहा है, क्वारी क्या आ रही है, कि राइट कीवर्ड पे आप जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसी से रिलेटेड आपको एक क्लाइंट मिला नहीं मिला, क्वारी क्रिएट हुई नहीं। सो ऑर्गेनिक रीच करना बहुत जरूरी है। अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में भी अवेयरनेस नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में या फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, फिर आपको एक बार एनालाइज करना चाहिए, चेक करना चाहिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। थैंक्स फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो इन सब के लिए तो पहले आपके पास एक बेसिक वेबसाइट तो होनी चाहिए जो वर्चुअल मार्केट आप क्रिएट कर रहे हैं। वेबसाइट नहीं होगी तो फिर आप प्रमोट क्या करेंगे? सर वेबसाइट क्रिएट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अमेज़न है, अमेज़न इज अ लार्ज Hospitality is very perfect. Till now it's going very good, right? And let's see for till now it's good. मैम अभी इनकी मेंटरशिप में हम क्वार्टर में जितना जो रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, सेल्फ ड्रिवन भी कर रहे हैं, MIC वाला भी कर रहे हैं और IIC वाला भी सारी एक्टिविटीज आप लोग खुद कर रहे हैं। Sally, it's good to see all of you here, and we are glad, and you all are very, very positive to start incubation facilities in your respective institutions. So it's a continuous process. At least it should start from somewhere, and sky is the limit. Apu बैठिए ना please. So except UPES, you are from UPES, right? You are from UPES. Except UPES, other are the affiliated colleges. You may be running different programs, engineering or management or something like that. So it is just a formal come informal discussions. So we are free to discuss whatever you want actually. Unfortunately, the students are not showing interest in their projects. Actually, the root cause lies there. If we are able to involve the students right from their first year and they are able to do good projects, then it becomes easier for the students also and it becomes easier for us also. Nowadays, all undergraduate programs under NEP has become of 4 years duration. Earlier, other UG programs except engineering were of 3 years duration, whether it is a BBA, BCom or BSc, BCA. So, normally the final semester, pre-final semester students are placed and final semester they go in industry and they join some project. So, if we are able to motivate the students right from beginning, first year, if the foundation is created, so that when they are into second year, they become quite matured also, and that is why nowadays most of the institutions are keeping the entrepreneurship development as a mandatory and core course, and that is taught in the second semester itself. So, if it is taught in the second semester or somewhere it is taught in first semester is I feel too early. Because the students coming from class 12, they may not understand. Although nowadays in CBSE or ICSE board, entrepreneurship is a subject which is introduced from class 11 onwards. So they are also taking entrepreneurship as a subject. But second semester can be fine because unless they are exposed to different small things, they understand some basics, but over the period of time when they are into third semester or fourth semester, they get mature. At least they can have some idea generation, validation, business plan competitions, and all those activities can be conducted time to time. So I am hopeful that you all may be doing some activities or other, and although we are in a mentor-mentee relationship, but doesn't matter, we can learn from each other.
There's no limit for learning. And in fact, you all should also interact with each other. There may be a good practice, maybe in one institution, that may not be in another institution. So that way also a mutual learning can happen. So those good practices can be adopted. You may, as a affiliated college, are you also running BBA, BCom, BCA, etc.? Has your university introduced NEP 2020? NEP only in the BCom and BA. Which university you are affiliated? Aligarh. Those courses which are all running annually, they have been introduced in the NEP. And those are in the semester system, they are not in the NEP. NEP, no program can be 3 years now. BBA has to be 4 years. 4 years, yes. Now every undergraduate program, irrespective of which approving body approves it, whether it is PCI or AICTE or whatever, each undergraduate program is of 4 years duration now. But the university is following the guidelines of NEP, but they are still in 3 years. Unfortunately, in India we are having large number of universities, and there is a different level of maturity and understanding in different states. So earlier I was with same University Bhopal, and Bhopal University came up with 2 ordinances, Ordinance 14A and 14B. 14A talks about the annual program, 14B talks about the semester program. But none of the government university has implemented it in toto, whatever is prescribed under NEP 2020. So that is the limitation with all of you. You can't do anything because you are affiliated college. Whatever way they have implemented, so you have to follow that. But as a university, TMU, UPS is having the liberty to go beyond and even offer some additional courses, so that, like here at TMU, we have offered multidisciplinary minor specialization. So because the focus is on multidisciplinary education, so say a student from engineering is interested to learn basics of nursing. So because in every family there are old people suffering from different diseases. So if they are interested to learn basics of nursing and physiotherapy, we have made one program wherein basics of nursing and physiotherapy, 2 courses of nursing, 2 of physiotherapy has been introduced. It is so they can take it. Or जैसे minor subject जैसे history, geography, commerce के समय commerce student have to read commerce, art वाले science के भी minors basic. But in different semester, different courses. Yes, sir. But here it is a specialization. Say somebody has gone for that specialization, they have to study 4 courses. So that is the minor specialization. 4 semesters, first 4 semesters. Similarly, say somebody is of engineering or maybe of say nursing, interested in digital marketing, offered by College of Management, so they can go for that. So anybody across the university can go for any interdisciplinary or we can say multidisciplinary minor. Our university, they have introduced one minor subject and we have to take from other faculty. Like in BCom we have given the microbiology subject and almost all the students are failed. So you have given and they have opted. No, the rule is that whatever course we are having in our college, in our campus and under NEP, we have to opt only that subject. So you have only microbiology and they have no interest in it. Now here case is different. So 15 interdisciplinary minor specialization. Student may opt for any out of those 15. As per their interest, as per their choice. There is no compulsion. When university was about to introduce the NEP, they have stated in their rule that we will give you 11 courses, out of which you have to select the minor. But at last they have now
ऐसी नहीं मिलेगा। Secondly, IOB भेज रहा है तो नहीं भेज रहा है, फैकल्टी नहीं है तो कैसे होगा? Secondly, what we have done, we have introduced projects from second year onwards. Every student has to do projects from third semester onwards. So we call it project-based learning. So that is another good feature which we have introduced. And exit options are available as per any and other things. Another important thing which we have done, AEC, BAC and SEC that we are giving. But for the skill development, we have introduced few courses which are related to technical proficiency in order to prepare the students for the companies, for the job placements. Right, so there are 7 or 8 such courses. 2 are relating to quantitative aptitude, 3 are relating to personality development and professional skills, and 4 courses are relating to technical proficiency. Like somebody is from computer science and engineering, different semester they will study coding and all that. HR specialization person will study HR related, supply chain specialization student will study supply chain related, and that liberty is given to the colleges to offer as per the demand. We have not fixed those courses. You can keep on changing as per the need of the industry, as per the specialization of the student. Third important thing that we have done is we have given different specializations. Student can opt for any two. One as a major, other one as a minor. Say, what is your background? I think your engineering institute is doing Engineering specifically is a very school of good. It's very old also. Yes. I think law you started very late. Yes, sir. We started last in 2012 we started law. Yes. Then latest schools are health sciences, but liberal and modern media. We have to Okay. So right now, how many campuses you are running? We have 2 campuses in Dehradun only. Acha, recently changed. I think somebody was there from Bhopal. Dr. Sunil Rai was there. Sunil Rai is from Bhopal. is chancellor. Sir is the chairman. He has become chancellor. Chancellor and chairman. Okay. Dr. Ram Sharma joined as the senior director, Senior director. and he became PVC in the time of 6 months and became the vice chancellor. I'm also working with Team Ranjit at UPS, and as Mohit has already told you, we have a 3 months incubation period, and there's an entire process that we go through, the lab facilities, like the working stations that we give them. So we have a complete 3-story building which is given to Runway Incubator, where our incubator sits. So every 6 months I start with a new cohort. So as an incubation program, we start with a pre-incubation stage. We run the incubation process for them, and these sessions are held on Sundays so that their studies do not get interrupted. The best part is we have incubators across the country. We also have international students and candidates from. So this cohort, we had almost 78 candidates with me with different domains, because there are a lot of schools, so it's sector agnostic. And so they will be pitching for the demos or demo day or the grant pitch day. And one lakh of grant is given to every candidate who pitches. So that is from the UPS side. That's given from the UPS. 1 lakh rupees. So there are things we can build on their programs to start with something. But if we see that there is a lot of potential in the candidate, we go up to 10 lakhs as well. So that's how the entire procedure repeats after every 6 months. So what we do is let's say we sign, which is affiliated to Guru Gobind Singh University in New Delhi, which is a state university, and our college runs BBA and MBA program, and we are into this IIC since 2021-22. And where is your institute in Delhi? It is opposite Sector 11 Metro Station, Dwarka, New Delhi. Okay. And this institute is under the trust of Shri Banasibas Chandiwala Seva Smarak Trust Society, which was formed in 1952. And this trust runs 3 other institutions like physiotherapy, Banasibas Chandiwala Institute of Information Technology, plus physiotherapy hospital as well, and an eye clinic. And within the same premises? No, not the same premises. This the Dwarka campus runs the BBA and the MBA program, and the others are there at the Chandiwala estate at Mahanand Mall,
New Delhi, in South Delhi, and there they have their main administrative block, plus the BCIIT or the Information Technology, plus another course, Hotel and Catering Management, another institute. So hotel and community that I came here and had the privilege of interacting with people here and interacting with ma'am also. And today your presentation, I had the good fortune to attend that as well. So indeed it has been a wonderful experience. And as far as the IC activities are concerned, our IC president is Dr. Suniti Chandio. She is from HR area and she is assisted by Ms. Renu Japar. And in that ED cell, I am one of the other members. My area is mainly management, specialization is marketing. So what I have observed that in the past 2 years or 2.5 years, whatever we have done in terms of the self-driven activity or the MIC activity or the celebration, the scores are not showing the desired outcome. At the moment we see that the rating is 1. Out of 5-star rating we have 1. And now the focus is on ensuring that whatever effort is being given into consistently, that should bear results. So thankfully we had a chance meeting with ma'am in that regional IIC meet at Amity University, and then the interactions happened with Dr. Suniti Chandio. Then Tirthankar Mahavi University consented to be our mentor, and since then a lot of meetings have happened and we have better clarity now on how to proceed regarding the activities and how to plan for level 1, level 2, level 3 and level 4. And till now we have uploaded 52 activities, and the last quarter we have 3 activities remaining which needs to be uploaded. We have an HR conclave and conference lined up, plus we need to celebrate the World Entrepreneurship Day and the Independence Day celebration, so that will be uploaded. So we are hopeful that yes, our star ratings should go up now, and though we don't have any control over the results, we can only pray for. And yes, another aspect that I would like to talk about is that today the focus area for me was to find out first year students are given entrepreneurship development as a non-university examination system paper. Means the entire non-credit. The credit is there, but the university will not make you sit and write the examination for it. The 100 marks evaluation is there with the faculty. Okay. The faculty will... Faculty members, even anyone, even if you can give the idea, on any aspect, and we installed a small box in every building, idea box. And we used to open that idea once in a month. And whosoever's idea is the best, or top 2-3 ideas, so we used to give them award on a public platform. Even our group was having, they have opened a new hospital, Apollo Sage Hospital. So what they started, they started to make special privilege cards. This was the idea given by one of the students. So a special privilege card, gold, silver, platinum cards. On one card, 10% discount was there, other card 20%, 30%, and so on. So they printed 50,000 cards, and that was sent across the city and multiple, at least 20-30 districts. Come here to get an exposure of IIC and ED cell, where I have seen many things like IPR and increment center. So I like about think and it changed my mindset also, thinking powers. So it's a good experience for me. Great. Chemistry department, assistant professor. Sir, जैसे कुछ problems हैं वो discuss करनी है. What you want to discuss करना? हाँ नहीं थोड़ा सा. ठीक है, publicly करना हो अभी तो करना है, अलग से करना हो. प्रॉब्लम ये है सर, जैसे हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज, वहाँ एडेड कॉलेज एडेड है. तो जो बैकग्राउंड है, जो बच्चे आते हैं वो सारे रूरल या उस तरीके से आते हैं, और जो हमारी फैकल्टी है, जैसे अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसी का, एक्चुअली मोस्ट ऑफ फैकल्टी को ही नहीं पता कुछ भी, है ना. अब जैसे बच्चा आता है या कैसे हम क्या करें, मतलब कैसे अटेंड करें, क्या चीज़ करें,
वो उस चीज़ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि जैसे कई बार मीटिंग मैम अरेंज करती हैं, बच्चों को हमने ग्रुप भी बनाया, उसमें भेजा भी, लेकिन बच्चे अटैच नहीं होते ना, फैकल्टी इंटरेस्ट दिखाती है। तो उस चीज़ में इसका डिमोरलाइज होने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहली मीटिंग अगर 500 बच्चों की लोगे तो अगली मीटिंग में उसमें से 50 आएंगे, है ना, 50 ही आएंगे, और उन 50 बच्चों को अगर क्लोजली आप थोड़ा सा और इनपुट दोगे तो 6 महीने के अंदर उस 50 में से 5 बचेंगे। तो अगर 5 भी बच गए तो वो आपका अचीवमेंट है। उन 5 के साथ मेहनत करिए, आप ये चिंता मत करिए कि 500 को हमने पहला इनपुट दिया था और अब 5 ही बचे हैं। वो 5 सीरियस टाइप के बच्चे होंगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गांव का बच्चा है या हिंदी मीडियम का बच्चा, उसमें पोटेंशियल नहीं है। बात तो चल सकते हो, कुछ सीखने को मिला सर, लेकिन इस चीज़ को कॉलेज में इम्प्रूवमेंट करना है टीचर को, ये चीज़। Sir, I am Asim Agarwal from IIMT Aligarh. Our college is affiliated to Raja Mahir Pratap State University and also to AKTU. We run MBA from the AKTU and the rest of the courses from Raja Mahir Pratap. We get enrolled in the IIC in the early year of 2023. And the one thing, the bigger change I have seen in MBA in first semester, there is a practical subject called mini project, in which the student has to develop an innovative idea. Before IIC, under the guidance of Pradeep sir and ma'am, we have learned this lot that we have told our student, कुछ भी हो कैसे भी हो एक आइडिया डेवलप करो जो अपना हो, जो पहले से हो चुका है वो भी लाओ, करके लाओ. And we were strange that out of 80 students, 40 students have come with a prototype on that day by one. Many students, one of our girl student has produced the organic hair oil. Though many organic hair oil are easily available in the market, but she has developed it. उसने गोले का तेल लिया, उसमें कुछ कड़ी पत्ता मिलाया, कुछ कलर चेंज हुआ, वो लेके. But we are very happy that after the IIC meetings, we were so much enthusiastic and we have built the entrepreneurship culture, and we have also developed a culture given to our faculty, and we assign various students to various faculty and they have also developed that culture. कुछ तो किया बच्चों ने. So this is the effect and impact of the IIC. Ever seen that Mahendra sir? What we have learned, especially the building culture for entrepreneurs. And now when we will go to our college, I will motivate my colleagues, not students, my colleagues, to motivate them to be the job giver for the future. Very good. My name is Abhilash Masi. I am assistant professor in IIMT Health and I joined IIMT in 2022 and I teach on legal subjects. And I joined IIC in 2013 and we do many more activities in the guidance of Vidanshu and Pradeep sir, and they are both very supportive and we do very more things in coming time. Good sir. ये कि आप अपने यहाँ के कॉलेज के स्टार्टअप से इंक्यूबेट कर रहे हैं, आप रीजनल एरिया में भी इंक्यूबेट कर सकते हैं, और जब आप रीजनल एरिया में इंक्यूबेट कर रहे हैं तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप 2 to 9.5% इक्विटी चार्ज कर सकते हैं स्टार्टअप पे, बेस्ड ऑन जो भी आपका अरेंजमेंट है विद द स्टार्टअप या आपका कॉलेज का जो इंटरनल अरेंजमेंट है, आपकी जो भी पॉलिसी बनती है, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए. जी तो बेसिकली तो डॉक्यूमेंटेशन आप हाँ, और उसमें भी 18 घंटे का